Hello students. So today we are going to cover second part of Long Walk to Freedom. I have planned to divide this chapter into three parts. So in previous part we have already discussed about the basics that Long Walk to Freedom is an autobiography by Nelson Mandela about his struggle for the freedom from white supremacy in South Africa. We have covered the basics about this topic. So let's start what happened next. So a few moments later, when everyone was there for the inauguration, a few moments later, we all lifted our eyes in awe, surprised, as a spectacular array, impressive display. What was that display? The display of South Africa's jets, helicopters, and troops carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. I think we are very familiar about this. During our Independence Day parade and other things, we can easily watch the scene जो हवाई जहाज के वो जो मूवमेंट्स करते हैं, तेज़ी से मूव कराते हैं उसको, एयरफोर्स के और तमाम तरह के हेलीकॉप्टर्स वगैरह, जेट प्लेन्स, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एडवेंचरस होती हैं, रोमांच से भर देती हैं हमें. ऐसा ही कुछ होता है, वो सिंबॉलिक होता है. गवर्नमेंट के लिए अपनी लॉयल्टी को शो करती है आर्मी, सेना, कि हम भी आपके साथ हैं, देश को बढ़ाने में, चलाने में, और पावर को भी दिखाती है हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं मिलिट्री के फॉर्म में, एयरफोर्स के फॉर्म में. सो इट वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन. ओनली मोमेंट्स बिफोर, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before, they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets, जहाज का नाम, जेट का नाम है, चेवकॉन, बी शेप्ड फ्लैग को जो बनाते हैं ना आसमान में, कलरफुल फ्लैग, बी शेप्ड लाइक. Finally, a chevron of Impala jets lit a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. These are the colors of flag. These colors are the part of South African flag. Black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Mental is reminding the days. कह रहे हैं कि कैसे आज सेना के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मुझे सल्यूट कर रहे हैं, और ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले मुझे सल्यूट करना तो दूर, मुझे जेल में डाल देते थे. यही सेना थी, यही पुलिस थी जो मुझे अरेस्ट करने आती थी. आज ये लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं. आई थिंक आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, सक्सेस इज़ द बेस्ट वे टू टेक रिवेंज. सक्सेस इज़ द बेस्ट वे टू टेक रिवेंज. सफल हो जाइए, सबसे बड़ा बदला हो गया. वही लोग जो मुझे जेल में डालते थे आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, सारे मेडल लगे हुए उनके, मुझे सल्यूट कर रहे हैं. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of whites singing Nkosi Sikelel' iAfrika. This is the national anthem for the white people in South Africa. And black singing Die Stem, the old anthem. The old anthem was sung by black people. Die Stem. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. दो ग्रुपों ने अलग अलग अपना नेशनल एंथम गाया, दो नेशनल एंथम गाया गया, एक वाइट ग्रुप का, एक ब्लैक पीपल्स का.
हाँ, उस दिन कोई भी अच्छे से गा नहीं सका वो एंथम, सबकी लय सुर सब बिगड़े हुए, सब अलग अलग तरीके से चिल्ला के, और प्रॉपर वे में नहीं था वो। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि वो जल्दी ये सब कुछ सीख जाएंगे, मुझे मतलब मंडेला। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, first decade of 20th century means 1901 to 1900 to yes 1910 तक, first decade, first 10 years of 20th century. In the first decade of the 20th century, a few years later, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer Wars. What was the Anglo-Boer Wars? Please check about this in detail. Anglo-Boer War. And what was its impact in Africa's freedom fight? And before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. बहुत पहले सब कुछ शुरू हो चुका था कि वाइट लोगों ने, जो डार्क स्किन पीपल थे, ब्लैक पीपल थे, उन पे अपना रूल चलाना पसंद करते थे। ये काफ़ी पहले, मेरे बर्थ से पहले की बातें हैं, स्टार्ट हो चुका था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. जो सिस्टम था वाइट सुप्रीमेसी का, वाइट का ब्लैक को डोमिनेट करना, ये सबसे बुरा दौर था। हार्सेस्ट, सबसे ज़्यादा कर्कश, सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे ज़्यादा कठोर रूल में आता था। ये इनह्यूमन था, अमानवीय था। ये जो आज तक कभी सुना गया है, जाना गया है, उसमें सबसे अमानवीय में से इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता था। आप ये चीज़ें अमेरिका में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अबाउट अमेरिकन हिस्ट्री ऑल्सो। डिस्क्रिमिनेशन इज कॉमन एवरीवेयर। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, लास्ट डिकेड मीन्स 1990 से 2000 तक, लास्ट डिकेड ऑफ मतलब 1900 टू 1910 अगर हम बात करें, फर्स्ट डिकेड 1990 के बाद, ये हमारा लास्ट डिकेड ऑफ 20th century। डिकेड मीन्स पीरियड ऑफ 10 years, सेंचुरी मीन्स पीरियड ऑफ 100 years, स्कोर मीन्स पीरियड ऑफ 20 years। And my own 8th decade as a man, my own 8th decade means he crossed 70 now in 8th decade। 7 डिकेड पूरा हुआ, 70 साल पूरे हुए। 8वें डिकेड में मैं भी हूँ, मतलब 80 साल का मैं होने वाला हूँ। 8वें डिकेड में, अपनी ज़िंदगी के मैं 8वें दशक में चल रहा हूँ। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब जाके ये सिस्टम बदला जा रहा है कि अब किसी को उनके रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये दिन ऐसे नहीं आ गया, इस दिन को लाने के लिए, सुप्रीमेसी को ख़त्म करने के लिए no one has given as gift। लाखों लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं यहाँ पे। Thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted on, repaid। लोगों को त्याग बलिदान जिसे ना मैं गिन सकता हूँ, ना उन्हें कुछ चुका सकता हूँ उसके बदले में। You can relate these things with the history of Indians during British period। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मंडेला कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जितने मेरे अफ्रीकन सेक्रीफाइस किए उनको मिला के मैं उनका जोड़ हूँ, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। That long and noble line ended and new began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। Wrought means
formed, framed, done, achieved. मैं ना तो उन्हें थैंक यू बोल सकता हूँ जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, और ना वो देख सकते हैं कि उनके बलिदान का आज क्या परिणाम मिल रहा है। मतलब लाखों लोग जान गंवाते हैं किसी और की फ्रीडम के लिए। दिस इज रियल, इसे कहा गया ना सेक्रीफाइस, समर्पण, त्याग। उन्हें पता है कि हम आज अपनी जान गंवाएंगे तो आने वाली जनरेशन्स उसको एंजॉय करेगी। आज तो हम अपने लिए सिर्फ जीते हैं, कंट्री बाद में आती है, फैमिली बाद में आती है। Sacrifice and the thoughts related to this are lacking nowadays. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sishlus, the Chief Lutlis, the Yusuf Dadoos, the Bram Fisher, and the Robert Subkus of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. ठीक है, वो बुरा टाइम था, हमें बहुत सी तकलीफ़ें भी दिया है, लेकिन कुछ महान पर्सनालिटीज़ को भी दिया है। अगर बुरा टाइम आए ही ना लाइफ में कभी, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सच में स्ट्रांग है और कौन वीक है। और एग्ज़ाम ही ना हो, वी कांट गेस हु इज़ गुड, हु इज़ बैड। एग्ज़ाम मीन्स नॉट ओनली राइटिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट फॉर मार्क्स एंड अदर थिंग्स। एग्ज़ाम मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम। तो और जो आए लोग, एक्स्ट्रा प्रेशर था, एक्स्ट्रा दबाव था, और उस दबाव में निखर के आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ निखर के सामने आई, जो फेमस हुई अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, साहस के लिए, उदारता के लिए। अब कुछ नाम दिए भी गए हैं, यू कैन गेट फिगर्स ऑफ दिस पर्सनालिटीज़ इन योर बुक। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा देश अमीर है मिनरल्स में, रिसोर्सेज में मेरा देश अमीर है, जो ज़मीन के अंदर पड़ी हुई हैं, सोने में, हीरे में, और लोहे में, चांदी में, बहुत से मिनरल्स मेरे ज़मीन के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो रियल मिनरल्स हैं मेरे कंट्री के, माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। जेम्स कीमती चीज़ों के, कीमती पत्थर, कीमती धातुएँ मेरे यहाँ बहुत मिलती हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people. रिसोर्स कितने हैं, लोहा, चांदी, कोयला, रिसोर्स कितने पड़े हैं, मिनरल्स कितने पड़े हैं, वो ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हैं कंट्री के पीपल। दे आर रियल रिसोर्सेज, रियल मिनरल्स। Known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. कैसे हैं वो? सबसे शुद्ध, सबसे बेहतरीन हीरे से भी ज़्यादा बेहतर है हमारे देश के पीपल्स, जो देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेते हैं, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, देश को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। The last two paragraphs very encouraging, very motivational and very meaningful. It is from these comrades in the struggle. Comrades means साथी, सहयोगी, colleagues एक word है, friends. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. यही लोग जो थे मेरे अफ्रीका के, जिन लोगों ने मुझे ये सिखाया कि दिमाग में अगर एक आइडिया आ जाए तो उसके लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगा देना बुरी बात नहीं है। ऐसे बहुत से मेन और वीमेन मुझे मिले जो एक छोटे से आइडिया के लिए, एक विचार के लिए, भावना के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से दांव पे लगा देते थे, कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर जाते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड्स अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience, the ability to deal with any kind of hardship, recover from its effects, resilience, चीज़ से बाहर निकलने की एबिलिटी, उबरना, the defeats the imagination. I learned that courage was not the absence of fear,
साहस क्या है? जो डरता है नहीं वो साहसी है? नहीं, डर सबको लगता है, डर सबको लगता है। जो डरता नहीं वही साहसी, ऐसा नहीं है। डर सबको लगता है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, जो डर को जीत लेता है, डर को जीत लेता है, डर के आगे बढ़ के काम करता है, वो करेजियस इंसान है। करेज मीन्स नॉट द लैक ऑफ फियर, फियर कॉमन है, फियर से ओवरकम करना, उससे जीत के आगे बढ़ जाना, ये करेज है। इज इट क्लियर? व्हाट इज करेज? नॉट द लैक ऑफ फियर, ओवरकम फ्रॉम योर फियर, दिस इज करेज। The brave man is not the who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर वो नहीं जो डरता ही नहीं है, बहादुर वो है जो डर पे विजय पा लेता है, जीत लेता है उसको। And last paragraph is very interesting and very encouraging. I love these lines. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इंसान घृणा सीख के पैदा नहीं होता है कि बचपन से हम पैदा होते ही सीख गए हैं कि हमें रंग के आधार पर भेदभाव करना है, धर्म के आधार पर भेदभाव करना है। ऐसा कुछ कोई जन्म से सीख के नहीं आता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मस्ट लर्न में सीखना चाहिए नहीं, सीखना पड़ता है, मतलब हमें हेट करना सिखाया जाता है। घृणा हम सोसाइटी से ही सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। इंटरेस्टिंग ना? अगर हम लोग घृणा करना सीख सकते हैं फिर तो लव करना उससे आसान है, बिकॉज लव इज मोर नेचुरल देन हेटर्ड। प्यार ज़्यादा आसान है करना, ज़्यादा नेचुरल है। हेटर्ड में सिखाया जाता है, घृणा गुस्सा सिखाया जाता है, बुराई करना सिखाया जाता है। अच्छाई हमारे तो पहले से ही होती है, उसे हम अपनी बुराइयों से दबा देते हैं, बुराइयों को हम बढ़ा लेते हैं अपने अंदर। To for love comes more naturally to the human heart than its opposite, even in the grimmest times in prison. When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. सबसे बुरे टाइम में जब मेरे और मेरे साथियों को जेल में डाला गया तो वहाँ पे जो गार्ड था, मैंने उसकी आंखों में भी कुछ पल के लिए सही जनरॉसिटी देखी थी, दया देखी थी। मतलब अच्छाई सबके अंदर होती है। इंसान की अच्छाई को लिखा है, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की अच्छाई एक ऐसी मसाल है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी ख़त्म या बुझाया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान अच्छा है अंदर से, अपनी बुराइयों से उस अच्छाई को छुपा देता है, लेकिन अगर कभी मौका मिलता है तो उसकी अच्छाई वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। एक फ्लेम जैसा है, ऐसा फ्लेम जो छुपा दिया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है, कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आफ्टर दैट यू हैव 5 oral comprehension check. Just read paragraphs again and try to answer the questions, and we will meet again in our next video. Thank you for today.